The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here. Good afternoon, everyone. I, Khushi Chaudhary, student of Delhi Metropolitan Education, welcome you all to the third session of Interactive Alumni Series 2022, which is organized by Alumni Association of DME Media School. The association has been named as Aspire, Alumni of Substance with Passion, Integrity, Resolve, and Empathy. I would like to take a moment and introduce Delhi Metropolitan Education to our viewers. Delhi Metropolitan Education DME is an A-grade premier educational institute affiliated to Guru Gobind Singh Indraprasth University, New Delhi, and approved by Bar Council of India. The institute offers BBA, BA LLB, and BBA LLB with VCI approval and BAJMC programs. Today, we have amongst us Ms. Pratiksha Mishra, alumni from batch 2014-17. Before calling our guest today, I request Professor Dr. Ambrish Saxena, Dean DME Media School and Director Studios and Productions at DME, to share his thoughts about Aspire and give some highlights about today's session. Over to you, sir. Thank you, Khushi. So this is a matter of pleasure that we have entered into, I think is the fourth episode of this interactive alumni series. We started this series having this in mind, that there has to be a constant interaction with the alumni, and that is how we set up this body Aspire, which is the alumni of substance with passion, integrity, resolve, and empathy. So there's the alumni body of DME Media School. And as part of this constant interaction, we have started this series, which is Interactive Alumni Series. And in this, we are inviting all our students who were earlier our students, but obviously once a student is passed out, it becomes a colleague. So all these are colleagues in the media industry. And that's in fact a connect. Always, alumni is always a connect between the industry and the institution with which they have where they have studied. So this relationship has to be made more strong, and that is in any case will be benefiting the students who are studying at this point of time in DME Media School, and this will go on and on. And so one important aspect of this whole series and this whole interaction with the alumni is that whatever is being learned by the student, the students of DME Media School, after acquiring positions in the media industry, all that experience comes handy for the younger generations, younger people who are studying at the moment. So two things happen this way. One, the expertise or the experience that the alumni has got, that's translated, that's handed over, that is transmitted to the existing students. And also as far as internship and placements are concerned, jobs are concerned, the students who are already placed in media, they can be a helping hand to the existing students. So this relationship will be beneficial to all, and there is also a benefit to the alumni as well, because they can relate to the institute where they have studied, and they can take care of their younger ones as and when there is a need of that. So that is how we wish that this whole alumni association is made more strong, and it functions more efficiently in the time to come. Thank you all. Thank you, sir. Our guest for today is Ms. Pratiksha Mishra.
Before I hand it over to her, I would like to share a brief note about her profile with you all. Pratiksha is alumni of batch 2014. Currently, she is working with Z Media as an assistant producer. She has contributed as an internee in Times of India. Her area of interest is writing during her college days as well. She has been a consistent student in academics and regularly participated in co-curricular activities. Before calling Ms. Pratiksha, I would like to call Dr. Manmeet Kaur, assistant professor at DME Media School. Over to you, ma'am. Thank you, Khushi. Thank you so much. So, Pratiksha, we are eagerly waiting to hear your experiences, your learnings from DME, as well as from various internships and various activities which were being held at DME. So, we are waiting, and the dice is all yours now. Yeah. Hi. Am I audible now? Yes, please. Yeah. Hello, everyone. Thank you, Manmeeta. Thank you so much. And thank you, Khushi, for this lovely introduction. सबसे पहली बात जो मैं कहूँगी कि DME is something which cannot be like deleted, or I can never forget that place. I can never. DME is my second family. मेरी जिंदगी की शायद मुझे तभी पता चला कि मुझे जर्नलिज्म करना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करियर में क्या करना है, आपको कहाँ आगे बढ़ना है. Journalism, studying journalism from DME has completely changed my life. Doing internship, doing practicals, theory, teachers, guidance, everything just changed everything in my life. आप कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे आप उस चीज को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बाद उसको करियर में आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब मुझे DME ने सिखाया है, मेरी टीचर्स ने सिखाया है. It's completely a big thank you to everyone there. और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत स्ट्रगल भी है, फाइट भी है, प्लस उसके साथ अगर आप टैलेंटेड हैं तो शायद वो चीज आपके लिए बहुत आसान हो जाती है कि आप फाइट इतना नहीं कर पाएंगे, स्ट्रगल आपको नहीं करनी पड़ेगी. अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको वो मौका जरूर मिलेगा. प्लस रेफरेंसेस, अगर मैं रेफरेंसेस की बात करूं तो यस, मीडिया इज अ प्लेस जहां आपको कभी कभी किसी चीजों में, कुछ चीजों में आपको रेफरेंस की जरूरत बहुत पड़ती है. मुझे भी पड़ी थी जब मैंने DME छोड़ा था और मैंने इंटर्नशिप से जी मीडिया ज्वाइन किया था. इंटर्नशिप के बाद विद इन 1 मंथ आप ये देखिए कि मैंने DME से इतना सीख लिया, इतना मुझे उन्होंने हेल्प किया, और इतनी अच्छी गाइडेंस, इतना अच्छा एजुकेशन है कि मुझे विद इन 1 मंथ, मेरे इंटर्नशिप में विद इन 1 मंथ उन्होंने मुझे एम्प्लॉय किया. वहाँ पे ये क्राइटेरिया है नहीं. वहाँ स्टूडेंट्स जो आते हैं कॉलेज से पास आउट, उनको एटलीस्ट 1 ईयर इंटर्नशिप करना पड़ता है. बट माई लक, माई काइंड ऑफ वर्क कि मुझे विद इन 1 मंथ उन्होंने एम्प्लॉय किया, एंड आई वॉज विद द पीपल ऑन डेस्क. आई वॉज जस्ट पास आउट ग्रेजुएट स्टूडेंट और मैंने जॉब शुरू कर दी थी अपनी. तो आई फील वेरी लकी कि मैं DME से पास आउट हूँ और मैंने वहां से पढ़ाई की है. टीचर्स की गाइडेंस, अगर मैं आपसे वहाँ टीचर्स के जो गाइडेंस है, टीचर्स जो हैं वहाँ पे वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव. अगर आप उनसे थ्योरी की बात करें, प्रैक्टिकल्स की बात करें, अपने करियर के बारे में बात करें, बेशक वो जर्नलिज्म मास कॉम ना हो, आपका कोई और करियर हो, कुछ भी, आप उनसे अपने मन खोल के आप उनसे बात करिए. एंड द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव, वेरी लवली, कि आपकी हर चीज में वो आपकी हेल्प करेंगी, हर चीज में वो आपको सपोर्ट करेंगी और आपको बहुत ही अच्छी गाइडेंस मिलेगी. ट्रस्ट मी, बहुत अच्छी गाइडेंस मिलेगी. आई लव द एनवायरमेंट, आई लव द टीचर्स, आई लव माई कलीग्स, मेरे जो को स्टूडेंट्स थे, द क्लासमेट्स, एवरीवन वाज वेरी गुड. और व्हाट एल्स, मास कॉम करने के बाद when I just joined this media industry, I was very much new. मेरे लिए पहला मेरा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो जी मीडिया है. मैंने इससे पहले कभी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म में काम नहीं किया. मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, देयर आर मेनी प्लेटफॉर्म्स. आप मीडिया मास कॉम करते हैं, जर्नलिज्म पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल जाते हैं. उसमें सब्जेक्ट्स हैं, आप PR में भी जा सकते हैं, आप इवेंट भी पढ़ सकते हैं, आप राइटिंग में भी जा सकते हैं, मीडिया में भी जा सकते हैं, मार्केटिंग में भी जा सकते हैं. बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके लिए हैं. मैंने मीडिया चुना. मेरे लिए जी मीडिया इज माई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टिल नाउ. और उसने मुझे इतना अपने से कनेक्ट किया है, जोड़ा है, दैट
आई फील वेरी लकी, आई फील वेरी हम्बल उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जी मीडिया के लिए, that they have given me so much of opportunity, they have given me respect, they have given me a very good environment जहां मैं काम कर रही हूँ। उन लोगों के साथ जो मेरे कलीग्स के साथ साथ दे आर वेरी सपोर्टिव टू माय पर्सनल लाइफ टू। समटाइम्स आपको लगता है कि आप घर छोड़ के बहुत दूर जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली के साथ नहीं है, आपके पेरेंट्स आपके आसपास नहीं है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपके कलीग्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं वो आपके आसपास होते हैं। तो मेरे लिए वो चीज बहुत चेंज, एक तरीके से चेंज ऑफ लाइफ, व्हेन माय पेरेंट्स वाज नॉट अराउंड मी बट मेरे कलीग्स मेरे पास थे। चाहे वो प्रोफेशन हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, दे हैव सपोर्टेड मी एंड दे आर वेरी 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 हम्बल, दे आर वेरी काइंड। स्ट्रगल और फाइट उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर होगा, मेरे लिए भी था, जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, कोई बैकड्रॉप नहीं है, या किसी बड़े कोई बड़ा सा नाम नहीं है। मेरे पास नहीं था, मेरे पास बहुत बड़ा नाम नहीं था जब मैंने जी मीडिया ज्वाइन किया था। जस्ट माई ग्रेजुएशन डिग्री, मेरे पास जो मुझे पढ़ाया गया था, जो मुझे सिखाया गया था, उन सब के बदौलत मैंने उस नौकरी को पाया है, उस जॉब को मैंने हासिल किया है, उस जगह को मैंने हासिल किया है। तो मेरे लिए ये चीज मैं खुद कह सकती हूँ कि फाइट और स्ट्रगल मैंने खुद किया है, और आई एम इन दिस जॉब टिल नाउ एंड आई फील वेरी गुड कि मेरा जो काम है मुझे काफी पसंद है। लोगों को अपना काम काफी पसंद आना चाहिए जो वो काम करने जाते हैं। सुबह मेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट है, मैं सुबह उठती हूँ और मुझे लगता है कि यार मुझे बस जो मुझे दिया गया है मुझे उसको 100% करना है। खबरें लिखनी हो, चाहे खबरें पढ़नी हो, चाहे उनको एंकर्स को देना हो, चाहे रिपोर्टर्स को देना हो, जो स्टोरी हम लोग प्रिपेयर करनी है, वो सारी चीजें, उन सब में आपका मन होना, आपकी खुशी होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुशी से मन से काम नहीं करेंगे तो शायद वो अपना बेस्ट ना दे पाए। लेकिन मैं बहुत इस चीज के लिए आई फील वेरी गुड, आई फील वेरी सपोर्टिव कि मुझे वो काम करने को मिल रहा है, या मैं वो काम कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। मेरी जिंदगी को बहुत ही अलग उसने एक डायरेक्शन दे दिया है, दैट आई हैव टू गो डिफरेंट, आई एम फ्लोइंग वेरी डिफरेंटली। थैंक यू मैम। अच्छा प्रतीक्षा, और एक चीज ये बताओ, हाँ हम क्वेश्चन पूछेंगे ना अब तुमसे। जब हम डिपार्टमेंट में, जब कोई स्टूडेंट बीजेएमसी का कोर्स करता है तो डिपार्टमेंट में वन और द अदर टीचर डेफिनेटली तुम्हें भी बताते होंगे कि न्यूज़पेपर्स पढ़ो, न्यूज़पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है। और उस टाइम पर स्टूडेंट्स उस चीज को सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर उनको इतना बोरिंग पीस ऑफ राइटिंग लगता है कि वो कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाते हैं। नाउ यू आर इन जी मीडिया, यू आर अ प्रोफेशनल। अब बताओ अपने जूनियर्स को, स्टूडेंट्स ऑफ डीएमई, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ डीएमई हैं, कि इस टाइम पर आज के दिन तुम्हारी जिंदगी में न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस है एज अ प्रोफेशनल। सबसे पहली बात डीएमएन्स, हम जो चीज कॉलेज में ज्वाइन करते ही सुनते हैं, 5 balls on 1 H, वो हमारी लाइफ के आसपास रिवॉल्व करता है। लाइक आपको उस खबर के बारे में पता होना चाहिए कि उस खबर में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ, क्या चीज है। और वो आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर, आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जो आपके वेरियस ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनसे पता चलेगा। अगर आपने वो नहीं पढ़ा, अगर आपने वो नहीं जाना, आपको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप कुछ नहीं लिख सकते, ना आप कुछ बोल सकते हैं। तो मेरे लिए आज की डेट में, मुझे भी पता जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था हम लोग को भी ऐसा था, बट अगर आप उस चीज के लिए सीरियस हैं, आप खुद देखिए, अगर आपको वो खबर पता है और आपसे सामने से किसी ने पूछ लिया कि यार पता है वो ऐसा हुआ था, हाँ हाँ मुझे पता है, आपको खुद कितना अच्छा लगेगा कि आपको उस खबर की हर एक डिटेल पता है कि वो खबर कहाँ की है, कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके आगे क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट है। आज की डेट में जब मैं ऑफिस ज्वाइन करती हूँ सुबह, तो मेरे लिए सबसे पहले जो चीज है वो यही है कि आज की 5 बड़ी खबरें क्या होने वाली है, आज कौन सी खबर हमें ज्यादा कवर करनी है, उस जो हमने कल खबर कवर की थी उसमें आज क्या होने वाला है, उसका क्या कंक्लूजन है, क्या रिजल्ट है। और वो चीज कहीं भी, वो चाहे एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो स्पोर्ट्स की हो। मैं मनीता एक चीज आपसे शेयर करूंगी, स्टूडेंट से शेयर करूंगी, कि हम लोग जब कॉलेज में थे, क्लास में हम पढ़ते थे, तो माय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो उस टाइम थी पारुल मैम, और बाकी सारी टीचर्स हम लोग को सिर्फ यही सिखाती थी, आपका करियर आप एक प्लेटफॉर्म में बनाते हैं, आपका फील्ड आप एक चूज करते हैं, आप अपना एक बीट आप चूज करते हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिकल हो। एक चीज के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन होती है,
लेकिन हर बीट की थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर आपका एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है तो एंटरटेनमेंट की हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिटिकल छोड़ देंगे या आप स्पोर्ट्स का पेज छोड़ देंगे। पढ़ना आपको हर एक पेज को है, चाहे स्पोर्ट्स में कौन सा मैच हो रहा है, कहाँ होने वाला है, कौन सा स्पोर्टी कहाँ पर है, पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स, इलेक्शंस में क्या होने वाला है, ये चीज अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सामने जो भी आपसे बात कर रहे हैं या कुछ, आप अपना व्यू नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि आप वो चीज नहीं जानते। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हो आजकल? मैम मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ अपना नवभारत टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदू। रही बात न्यूज़पेपर की तो सबसे पहले तो मैं जी मीडिया डीएनए पढ़ती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। अच्छा ये बताओ प्रतीक्षा, जो इस टाइम पर तुम एज अ असिस्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हो, उस काम के लिए तुम अपने जूनियर्स को, डीएमई के स्टूडेंट्स को किस तरीके से गाइड करना चाहोगी? अभी से ही उनको ऐसे कौन सी 3 से 5 एसेंशियल क्वालिटीज अपने में इनकलकेट करनी चाहिए कि अगर वो प्रोडक्शन टीम में या फिर वो सामने ऑन द कैमरा टीम में वो काम करना चाहे टेलीविजन में, तो वो ऐसी कौन सी 3 से 5 अच्छी हैबिट्स या अच्छी क्वालिटीज अपने में इनकलकेट करें? सबसे पहले अगर आप एक मीडिया स्टूडेंट हैं तो आपको खबरों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। ये हर एक डीएमएन के लिए है जो मास कॉम पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि खबर आप जान जाएंगे कि वो खबर क्या है, तो आप उसके बारे में लिखना, बोलना और शायद समझाना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं राइटर हूँ, मुझे डेस्क पर खबर लिखनी है, तो मुझे उस खबर के बारे में हर एक डिटेल पता होनी चाहिए, चाहे वो कहीं की भी हो। अब मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कवर कर रही हूँ उस जगह को, तो वहाँ शिवराज से लेकर भूपेश बघेल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ क्या, कब कहाँ क्या करने वाले हैं, कौन सी योजना लॉन्च होने वाली है, उन चीजों के बारे में मुझे पता होता है। स्टूडेंट्स के लिए जो 5 चीजें इंपॉर्टेंट है या 3 चीजें जो इंपॉर्टेंट है, वो सबसे है कि उनको खबर के बारे में पता होना चाहिए कि वो खबर कहाँ की है, उनको लिखना आना बहुत जरूरी है, उनको हिंदी की जो भाषा है, जो उनका लिखावट है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। खबरों में न्यूज़पेपर और टीवी के लिए बहुत अलग दो फील्ड खुल जाती है। न्यूज़पेपर में हम बहुत ज्यादा क्लिष्ट जो हमारी हिंदी होती है उसको थोड़ा घुमा के और लिखना हम लोग लिखते हैं। टीवी में हम जितनी आसान लैंग्वेज में उस खबर को समझा सकते हैं, वो सबसे अच्छा एक तरीका हम मानते हैं। जब मैं टीपी लिखती हूँ और एंकर पढ़ता है, तो मैं उसमें क्लिष्ट भाषा यूज नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एंकर को या जो हमारा व्यूअर है उसको समझने में शायद टाइम लग जाए। तो जितनी सिंपल लैंग्वेज में हम उस चीज को लिख सकते हैं, जितनी सिंपल लैंग्वेज में हम उस खबर को समझा सकते हैं कि वो खबर कहाँ की है, कैसे हुई, तो वो बहुत आसान होता है। अगर आप एंकर बनना चाहते हैं, जो कि बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि जर्नलिज्म और मास कॉम सिर्फ एंकर्स के लिए है, उसमें सिर्फ एंकर और टीवी और फेम ये सब है, तो पहला डाउट तो यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए कि मास कॉम और जर्नलिज्म सिर्फ एंकर्स के लिए नहीं है। आप, मैं समझती हूँ सबका अपना एक करियर होता है, सब एक सोचते हैं कि हमें एंकर बनना है इसलिए हम मास कॉम ज्वाइन कर रहे हैं। उस एंकर के पीछे एक बहुत बड़ी टीम होती है। एक एंकर सिर्फ एक फेस है उस चैनल का। उस एंकर को क्या पढ़ना है, विजुअल्स क्या चलेंगे, बाइट क्या चलेगी, खबर कहाँ से आएगी, कौन लिख रहा है, रिपोर्टर कौन है, इन सब एक बहुत बड़ी टीम काम करती है उस एंकर के पीछे। एंकर को अगर हम लिखकर नहीं देंगे तो एंकर पढ़ेगा क्या, ये देखिए। तो आपको अगर एंकर भी बनना है तो आपको खबर पता होनी चाहिए, आपको डिटेल होनी चाहिए कि जो टीपी आप पढ़ रहे हैं वो किस चीज के बारे में, वो खबर क्या कहती है, हमें अपने व्यूअर्स के पास क्या पहुंचाना है। ये हो गई बात एंकर्स की। रही बात रिपोर्टर्स की, जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो फील्ड में जो काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फाइट है, क्योंकि हर जगह इधर से उधर भागना है, खबरें लेकर आनी है और ऑन द स्पॉट उस खबर को लिखकर हमें इनपुट से आउटपुट डिपार्टमेंट तक पहुंचाना है। रिपोर्टर का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रिपोर्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। एकदम डर वाली चीज तो कहीं नहीं आती। रिपोर्टर के अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर रिपोर्टर डर गया तो वो एक मिनिस्टर की या किसी की भी बाइट नहीं ला पाएगा, खबर नहीं ला पाएगा। तो उसके अंदर बहुत जज्बा बुलंद होना चाहिए। रिपोर्टर्स, मेरा जो फेवरेट फील्ड है वो राइटिंग है, डेस्क है, और मैं एंकर जब करती हूँ तो एंकर है। लेकिन मुझे पसंद है जब बिना पढ़े पढ़ना। जैसे हम लोग के बहुत एंकर्स होते हैं जो टीपी हम लोग पढ़ते हैं, सुबह बुलेटिन चलाते हैं तो उसमें हम टीपी लिखते हैं और एंकर्स टीपी पढ़ते हैं। मेरे लिए बोलना बिना पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे एक टॉपिक बता दिया और मैं बोलूँ उस टॉपिक के बारे में।
और डीएमएम्स को। और मीडिया लाइन में सबसे इम्पोर्टेंट है बेडर होना, निडर। आप अगर डर गए तो आप मीडिया में नहीं रह सकते। ट्रस्ट मी, आप अगर निडर हैं तो आप मीडिया में नहीं रह सकते। आपको बेखौफ, क्योंकि मीडिया का काम ही है लोगों की पोल खोलना, और अगर आप उस चीज से डर गए तो आप, कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मीडिया में कभी कभी खबरें ऐसी चलती हैं जो शायद मिनिस्टर्स चलवाना चाहते हैं, या लोग चाहते हैं कि खबरें, कभी कभी मिनिस्टर्स होते हैं, कभी कभी मिनिस्टर्स मना कर देते हैं ये खबर नहीं चलानी है, तो हमारे डिपार्टमेंट तो साफ कहते हैं क्यों नहीं चलानी है, क्यों, आपकी पोल खुल जाएगी इसलिए नहीं चलानी है। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग का काम खबर कवर करना है, हम लोग का काम है अपने व्यूअर्स को बेबाकी से हर चीज दिखाना, हर चीज साफ दिखाना। जैसा अच्छा ये बताओ, जब इंटर्नशिप किया था टीओआई में, उस इंटर्नशिप से तुमने क्या ऐसा तुम्हें लगा कि हाँ दिस इज द फील्ड जहां मैं जाना चाहती हूँ, दिस इज लाइक, कह रही हो ना तुम कि राइटिंग में तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली टीओआई में जब इंटरेस्ट आया होगा, राइटिंग किया होगा, रिपोर्टिंग किया होगा, तो उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताओ। मैंने जो टीओआई में शुरुआत की थी, मैंने 1 महीना वहाँ इंटर्नशिप किया है, और टीओआई इज कम्प्लीटली डिफरेंट बैकग्राउंड, मतलब वो बिल्कुल एक इंग्लिश चैप्टर है मेरे लिए। और आज जो मैं काम कर रही हूँ वो एकदम हिंदी चैप्टर है। आई वर्क विद बोथ द लैंग्वेजेस, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी। जब मैंने टीओआई में शुरू किया था तो सबसे पहली मुझे खबर दी गई थी एनवायरमेंटल, ग्रीन एनवायरमेंटल, उधर यमुना, यमुना रिवर, द बैंक ऑफ रिवर यमुना, उसको साफ करने का काम चल रहा था। उस खबर को मुझे कवर करना था, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, उसमें जाकर अपने सवालों को, इस सबको हम लोग को रखना था। हम लोग बहुत बेबाकी से वहां गए, हम लोगों ने पूरा कवर किया, हम लोगों ने उनकी हेल्प भी करी उस टीम की। और उसके बाद जब हम लोग ऑफिस आए हैं तो हम लोग के सर ने हम लोग से पूछा कि क्या लाए हो आज तुम लोग, क्या खबर है तुम लोग के पास, क्या कवर करने गए थे, ग्रीन एनवायरमेंटल, क्या किया वहां, सफाई की, बस खत्म। मैंने फिर उनको हर एक चीज हम लोगों ने लिख के दी कि नहीं सर आप गलत कह रहे हैं। और सर ने वो चीज अप्रिशिएट की कि हाँ तुम लोग एटलीस्ट, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है कि वो क्वेश्चन गलत है या सही है, और तुम बेबाकी से ये नहीं कह रहे हो कि नहीं बॉस है तो बॉस को हम आर्ग्यू, हम लोग को बॉस को गलत बोलना है। गलत नहीं, अपनी बात को बहुत ही सीधे और साफ तरीके से रखना कि नहीं सर ऐसा नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो नहीं है, हम जो कवर करके आए आप ये देखिए, हम क्या क्या, हमने हर चीज की डिटेल दी कि हमने वहाँ क्या किया, किस चीज पे हमने सर्वे किया, हमने किन किन से बात की, हमारे क्वेश्चंस क्या थे, उनके सवाल क्या थे। उस चीज का पूरा जब आर्टिकल हम लोगों ने लिख के दिया सर को, तो सर को काफी अच्छा लगा, एंड दे अप्रिशिएटेड, द टीम अप्रिशिएटेड कि इन लोगों को ये नहीं लगा कि हमें बॉस की हाँ में हाँ मिलाना, चाहे बॉस गलत बोल रहे। ठीक है, नाइस प्रतीक्षा। मैं बाला मैम से रिक्वेस्ट करूंगी, आई एम श्योर बाला मैम ने कुछ क्वेश्चंस लिख रखे हैं जो प्रतीक्षा से वो पूछना चाहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं नहीं, क्वेश्चन नहीं रख रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुमने जो भी फील्ड में सीखा और जो तुमने स्टूडेंट्स को बताया कि हमें बेबाकी से काम करना चाहिए, लीडर रहना चाहिए, और ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप बेबाकी से कोई बात कहते हैं या लीडरता के साथ कहते हैं तो, लेकिन तभी कह सकते हैं ना जब आपकी को नॉलेज है, सब्जेक्ट में पकड़ है। अगर सब्जेक्ट में पकड़ नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप उसको बेबाकी से नहीं कह सकते। जैसे तुमने कहा कि लोग ज्यादातर देख के पढ़ना चाहते हैं, उनके पास रिटन स्क्रिप्ट होती है, बट तुमने बोला कि तुम चाहती हो कि तुम बिना देखे, बिना लिखी हुई स्क्रिप्ट के पढ़ कोई भी चीज एक्सप्रेस करो। इट मीन्स कि आपको प्रिपेयर रहना चाहिए उन सारी चीजों के लिए, उन सारी बातों के लिए जो आपके पास हैं। आपने हार्डकोर वर्क किया हुआ है, आपने हार्डकोर रिसर्च किया हुआ है, तो आप ना केवल प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, आप किसी भी फील्ड में जब आप काम करते हैं तो आपको उस सब्जेक्ट में, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता ना कि आपको किस असाइनमेंट पे भेजा जाएगा, तो आपको जिस असाइनमेंट पे भेजा जा रहा है वहां के लिए आपको प्रॉपर प्रिपेयर होके जाना। लाइक तुमने कहा पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू अगर आपको करने हैं तो पॉलिटिशियन का बैकग्राउंड भी तो देखना पड़ेगा ना, कि पॉलिटिशियन किस बैकग्राउंड का है, उन्होंने क्या किया है, एक्चुअल वर्क उन्होंने क्या किया है, फेक क्या किया हुआ है, एक्चुअल उन्होंने वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते हैं। तो जब आप सारी चीजें समझ लेंगे, सारी चीजें पकड़ लेंगे, तभी आप उनके लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे और तभी आप उनसे बात कर पाएंगे। तो मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ जिस तरह से प्रतीक्षा ने सारी बातों को बोला।
सो दिस इज वेरी गुड कि प्रतीक्षा को इतना टाइम हो गया है काम करते हुए, जब यहाँ से ये एज ए फ्रेशर गई होंगी तो इनको लगा होगा कि हाँ मुझे क्या क्या काम करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है जो मैं डिजर्व करती हूँ। जैसे तुमने बोला कि तुम राइटिंग में इंटरेस्टेड हो एंड एंकरिंग ऑल्सो, बट क्योंकि हमारे पास बहुत सारी फील्ड, वाइड फील्ड्स हैं जिसमें आपको काम करना अच्छा लगता है, ऑल द टाइम एंकरिंग नहीं अच्छा लगता है आपको, कभी लगता है कि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन हो, आपने कुछ पढ़ा, कुछ लिखा, कुछ रिसर्च वर्क किया, तो जब आप ये सारी चीजें करते हैं तो आपको, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि एंकरिंग करना है तो एग्जैक्टली मैम, इजी टास्क, बट नॉट इजी टास्क नहीं है। आपको उस एंकरिंग के लिए भी प्रॉम्प्ट होना पड़ता है। 11th आवर स्टोरी में इन स्टूडेंट को जिनको पढ़ाती हूँ मैं यही बताती हूँ कि जब 11th आवर कोई भी स्टोरी ब्रेक कर रही है तो आपको उससे पहले का कुछ नहीं पता होगा तो आप उस समय सिचुएशन संभाल नहीं सकते हैं। जी मैम, तो अगर आपको सिचुएशन हैंडल करनी है, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ ब्रेकिंग न्यूज आया है, तो ब्रेकिंग न्यूज के बाद क्या, जब तक आपके पास विजुअल्स आएंगे, जब तक एनिमेटेड कुछ आपके पास आएगा, उससे पहले तो आपको सिचुएशन संभालनी है। तो एंकर के पास भी ऑल द टाइम सारा स्क्रिप्टेड नहीं हो सकता। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको मेंटली उसी जगह उस तरह से इन्वॉल्व होना पड़ता है कि काम क्या है और क्या हम कर रहे हैं। नॉट ओनली प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, एडवर्टाइजिंग, पब्लिशिंग, क्योंकि जब आप मीडिया में आ गए तो आपके पास बहुत सारी फील्ड है काम करने के लिए, यहाँ ये बहुत जरूरी है। सो प्रतीक्षा, बहुत अच्छा लगा कि इतनी अच्छी तरीके से, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ तुमने इतनी सारी चीजों को बताया। हम बेशक ना मिले हों, लेकिन तुमने जिस तरह से सारी चीजें इंटरप्रेट की, स्टूडेंट्स को बताया, बहुत अच्छा है, बहुत ही, और लगभग सभी एस्पेक्ट्स कवर किए, तो दैट्स नाइस। मैम मैं एक चीज और आपको बताती हूँ। जैसे अभी आपने कहा कि एंकर्स के पास ब्रेकिंग आ जाती है एकदम से, और हमें फिर एंकर को उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अभी लास्ट दिसंबर 2021 में सीडीएस का जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, वो ब्रेकिंग ऐसे फ्लैश हुई। एंकर जो बैठा है, अगर उसे सीडीएस के बारे में, बिपिन रावत के बारे में पता ही नहीं होगा कि वो कौन थे, उनका क्या बैकग्राउंड है, क्या है, कहाँ से आए हैं, कौन कौन लोग हैं उसमें, तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, वो बता ही नहीं पाएंगे कि सीडीएस। वो सिर्फ एक लाइन में ये पढ़ देंगे कि सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, और बार बार उसी चीज को रिपीट करेंगे, जो व्यूअर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो एक लगेगा बट मतलब एक तरीके से एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है। तो उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि बिपिन रावत कौन थे, क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी का इंटरव्यू लेने भी जाए। कभी कभी होता है, जैसे हम लोग किसी का इंटरव्यू लेने गए और हमने कभी काउंटर किया किसी क्वेश्चन को, तो जो पॉलिटिशियन है, जो नेता है, जो भी मिनिस्टर है, वो उनको थोड़ा अटपटा लगता है कि एकदम से सही पॉजिटिव सवाल करते करते एकदम से कैसे काउंटर किया, तो वो मना कर देते हैं, बातों को घुमाने लगते हैं। लेकिन हमें अगर उस चीज की नॉलेज है कि ये क्यों घुमा रहे हैं, ऐसी क्या बात थी और क्यों ये बात, हमें असलियत पता होती है, तो हम उस चीज को दोबारा उनसे फोर्सफुली निकलवा सकते हैं, घुमा फिरा के निकलवा लेंगे। घुमा फिरा के निकलवा सकते हैं। रेडियो की आप बात कर रहे थे, रेडियो में भी सेम ये है, आपकी आवाज जितनी बुलंद और जितनी अच्छी लोगों के पास पहुंचेगी, जिस तरीके से आप अपनी बातों को रखेंगे, तो रेडियो में भी वही चीज है कि रेडियो इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक। और सिर्फ एंकरिंग इज नॉट अ थिंग, देयर इज अ बिग टीम, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो पब्लिक रिलेशन का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, आप कवर कर सकते हैं। सिर्फ एंकरिंग पर अटकना, सिर्फ एंकरिंग सोच के मास कॉम ज्वाइन करना इज नॉट अ गुड थिंग। यस। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टार्टिंग में तुमने बोली थी कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि रेफरेंस से हम एंट्री हो जाएगी। रेफरेंस से एंट्री तो हो जाएगी, लेकिन जब तक नॉलेज नहीं है और काम नहीं आएगा तो वो रेफरेंस, आप जिसकी रेफरेंस से जा रहे हैं उसकी रेपुटेशन और डाउन कर देंगे। काम कैसे रेफरेंस से चाहिए, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, वहां पे भी आपको नॉलेज की जरूरत होती है, क्योंकि जॉब के लिए स्पेस आपको खुद बनाना है विद योर टैलेंट एंड प्रॉपर नॉलेज एंड एवरीथिंग। बहुत जरूरी है, आप जिस चीज में जा रहे हैं, कोई जिस चीज में आप करियर बनाना चाहते हैं, उस चीज के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप अपना करियर कैसे बना पाएंगे। प्रतीक्षा, हमारे साथ ना विशाल सर भी हैं। विशाल सर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डीएमई मीडिया स्कूल में। विशाल सर, प्लीज आप जरा प्रतीक्षा से पूछिए कुछ।
प्रतीक्षा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हेलो करके सर। और आपकी चीजें। हेलो प्रतीक्षा, मेरा क्योंकि मैम और हम लोग स्क्रिप्टिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि, और जो एंकरिंग का भी सब्जेक्ट है हमारे पास, तो मेजरली जो, क्योंकि तुम असिस्टेंट प्रोड्यूसर हो और तुम्हारे लिए स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है, और जब तक, क्योंकि सारी क्वालिफिकेशन एक तरफ, आपकी स्क्रिप्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। देखिए, हम लोग लल्लन टॉप को सुनना इसलिए पसंद करते हैं, वो अलग तरीके से लिखते हैं। तो आपकी तरीके, जैसे डीएनए की जो जिस तरीके की रिसर्च होती है, जिस तरीके की रिसर्च करके वो स्क्रिप्टिंग करते हैं, तो स्क्रिप्टिंग का रोल एज ए जर्नलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और जो स्टूडेंट जो मीडिया फील्ड में आना चाहते हैं, उनको किस पॉइंट्स पर स्क्रिप्टिंग पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कि जिससे कि सबसे पहला ही जो स्वागत होता है वो एक A4 शीट से होता है, और कहा जाता है कि आप स्क्रिप्ट लिख के सुना लीजिए, फिर हाँ, हम आगे बात करेंगे। एग्जैक्टली सही चीज मैं मानती हूँ कि जब भी कोई नया इंटरव्यू हमारे इंटरव्यूअर आता है और हम लोग को एक ही चीज दे दी जाती है कि ये नए हैं, इनको ज्वाइनिंग है, इनको आप टॉपिक दे दीजिए, इनको स्क्रिप्ट लिखनी है। तो स्क्रिप्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो है कि आपको खबर पता होनी चाहिए, खबर कहाँ से आई है, किस चीज के बारे में खबर। अगर हम खबर लिख रहे हैं तो कभी कभी होता है कि किसी स्टोरी को हम कवर करने गए हैं, किसी फैमिली बैकग्राउंड को कवर करने गए हैं, या किसी ऐसी कभी कभी एजुकेशन की चीजें हैं, योजना है, प्रधानमंत्री की हो चाहे इनके सीएम की हो, उन योजनाओं को हम कवर करने जाते हैं, उसके बारे में स्क्रिप्ट लिखते हैं, चाहे वो पूरी स्टोरी हो बाइट्स के साथ। तो 5 hours 1 edge तो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए वो खबर कहाँ से आई है, वो खबर किस चीज के बारे में। और जितनी सिंपल लैंग्वेज में आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर लिख सकते हैं, उस स्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, व्यूअर समझ जाए आपकी लैंग्वेज को, कि आप क्या कहना चाहते हैं, वो सबसे अच्छा होता है। छोटे सेंटेंस, ज्यादा बड़े सेंटेंस होने नहीं चाहिए, छोटे सेंटेंस, छोटी स्क्रिप्ट, और एकदम कंप्राइज साइज में आपने अपनी पूरी स्टोरी बता दी कि हम क्या बताना चाहते हैं। जैसे मैं क्राइम डेस्क पर हूँ, मैं क्राइम का बुलेटिन बनाती हूँ पूरा, तो मुझे पता है कि वो एक्सीडेंट कहाँ हुआ था, कैसे हुआ, कौन इन्वॉल्व था, अगर कोई बड़ा नेता इन्वॉल्व था, या कोई छोटी भी कोई चीज है, तो उस चीज को पूरा हमें देखना, उसके बाद उसमें कंक्लूजन क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला, उस चीज को बहुत ही सरल भाषा में समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उस चीज को बहुत छोटी सेंटेंस में ढालें, बहुत सरल भाषा में लिखें, और उसकी जो बाइट है, अगर हम उसमें बाइट लगा रहे हैं, या उसमें हम ग्राफिक्स लगा रहे हैं, या उसमें हम मॉन्टाज बना रहे हैं, मॉन्टाज जो पूरी स्क्रिप्ट का निचोड़ है, जो स्क्रिप्ट से पहले चलता है, मॉन्टाज, उस मॉन्टाज में आप हर एक चीज दिखा देते हैं कि हम क्या कवर करने वाले हैं, उसका म्यूजिक, उसके विजुअल्स, उसमें बाइट, उसमें अप साउंड, हर चीज एकदम बारीकी से लगानी है, सिलेक्ट करके लगानी है। उसके बाद हम उस खबर में सबसे पहले लिखते हैं कि हम खबर है क्या, इंट्रोडक्शन, सबसे ऊपर इंट्रोडक्शन, उसके बाद जो उसका मेन कंटेंट है, किस पूरे खबर में कहाँ से खबर आई थी, क्या हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद कंक्लूजन कि उसमें क्या रिजल्ट आया, और फिर उस रिपोर्टर का वाइंड अप, जिस रिपोर्टर ने उस खबर को भेजा है। तो सब सब ओवरऑल जो चीज है वो है कि खबर को बहुत सरल भाषा में समझाना है, और बहुत ही सिंपल हिंदी लिखनी है। क्लिष्ट भाषा में हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम नहीं कर पाएंगे। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था, बिकॉज कि टीचर्स बोलते हैं तो स्टूडेंट समझते हैं कि ये लोग ऐसे कह रहे हैं। मैंने इसलिए बोला कि जो इस फील्ड का व्यक्ति है उससे पूछो, कि जो इसी मीडिया से आया है, इसी कॉलेज से पढ़ के गया, कि भैया आपको स्क्रिप्ट के लिए ये तैयार करना ही करना है, उसके बाद आपकी चीजें समझ में आती है। तो प्रतीक्षा, मेरा एक और प्रश्न है कि जैसे काफी हद तक उन्होंने एंकरिंग की चीजों का बातें की, बट जब रिपोर्टिंग के लिए स्पेशली कभी मौका लगता है, रिपोर्टिंग सबको नहीं मिल पाती है, फील्ड रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल से लोगों को मिलती है, तो फील्ड रिपोर्टिंग में जब हम लोग जाते हैं, तो अभी तक हम सब स्टूडेंट यही मानते हैं कि जाना है, रिपोर्ट आपको बाइट लेनी और आ जाना है। बट आपको पता है कि स्क्रिप्ट पहले नहीं लिखी जाती है, वहां पे जाते हैं, लोकेशन पे जाते हैं, शॉर्ट्स को, लेकिन किस माइंडसेट से स्टोरी को, और उसमें जो रिलेशनशिप बिटवीन योर कैमरा पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस चीज को कैसे मैनेज किया जाता है कि जब हम कभी स्टोरी कवर करने जाते हैं, कि आपको एक अपने ड्राइवर से लेके आपको कैमरा पर्सन जो है, आपके कैमरा मैन है वो, और स्टोरी आपका आउटपुट वाले, इन सबके साथ एक स्टोरी को निकालना कितना बड़ा प्रोसेस, और कितना इजी कर सकते हैं हम लोग अपने कुछ टिप्स से? सर, जब एक रिपोर्टर फील्ड पे होता है ना, तो उसके साथ पूरी टीम फील्ड पे पहुंच जाती है मेंटली, कि कोई रैली चल रही है, या किसी पॉलिटिशियन को कोई वोट देने आया है,
ब्रेकिंग एक तरीके से हो गई कि एकदम से कोई मिनिस्टर उतरे गाड़ी से और वो वोट देने चले गए। मोस्टली क्या होता है, कभी वोट देने गए उसके बाद वो बाइट देते हैं। किसी के हम जनरली ऐसी बाइट लेने गए तो हमें मौका मिल जाता है कि कैमरा पर्सन, हमने गाड़ी ली, कैमरा पर्सन हमारे साथ है और हमने बाइट लेके हम लोग आ गए। रैलीज में जाना, वोटिंग के टाइम, इलेक्शंस के टाइम पे मिनिस्टर्स को कवर करना, किसी बहुत ही भीड़ है और वहां एकदम कैमरा पर्सन को घुसना है, रिपोर्टर को बाइट लेनी है, उसमें पूरी टीम हमारी इन्वॉल्व रहती है कि तुरंत जैसी मिनिस्टर बाहर आए हमें मौका नहीं छोड़ना है। बाकी बहुत सारे रिपोर्टर्स होते हैं वहां पे, हमें मौका नहीं छोड़ना और हमें अपनी बाइट चाहिए। उस टाइम एकदम खुल के इंसान आ जाता है कि नहीं मुझे, कैमरा पर्सन को भी हम कभी कभी वेव करते हैं, कभी दूर हो कैमरा पर्सन एकदम वेव, कैमरा पर्सन के लिए बहुत ज्यादा फाइट हो जाता है, स्ट्रगल हो जाता है, भीड़ में एकदम कैमरा लेके घुसना, फिर माइक हम कभी उसको दे देते हैं, मिनिस्टर्स के आगे लगा देते हैं और हमें वो बाइट मिल जाती है। लकीली कभी कभी होता है कि नहीं मिल पाती है, लेकिन इन सबके बीच में जो कनेक्शन है वो प्री प्लान होता है। क्यों हम लोग माइंडसेट के साथ जाते हैं फील्ड पे कि ये रैली है और यहाँ हमें फाइट करनी है, यहाँ हमें कैसे भी भीड़ में घुस के, कि लाखों लोग वहां खड़े हैं और उनके बीच में जाके हम लोग को उनकी बाइक, मिनिस्टर की बाइक लेनी है। तो उसके लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो असाइनमेंट हो, असाइनमेंट हमें पैच कर रहा है रिपोर्टर को आउटपुट डेस्क पे, एंकर के साथ पैच कर रहा है, कभी कभी एंकर्स हम नहीं पैच कर पाते, नेटवर्क का इशू हो जाता है। तो ये सारी चीजें बहुत फाइट है इन सारी चीजों का। नेटवर्क कभी कभी नहीं मिल पाता है, ओबी वैन दूर खड़ी है, ओबी वैन नहीं पहुंच पाती है वहां पर जहाँ मिनिस्टर है, जहाँ बाइक लेनी है। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रगल्स है, लेकिन ये सारी चीजें सब प्री प्लान होती है। कभी कभी जब प्लान नहीं होती है तो वो फाइट होती है, ऐसा नहीं है कि फाइट नहीं होती है, प्रॉब्लम्स नहीं आती है, प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उन सब चीजों से ओवरकम करती है टीम वर्क। तो टीम वर्क होना, आपस में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप कैमरा पर्सन की बात ही नहीं सुनेंगे, कभी कभी कैमरा पर्सन के पास वो आइडिया होता है जो हमारे रिपोर्टर्स के पास नहीं होता है, रिपोर्टर के पास वो आइडिया होता है जो कैमरा पर्सन कवर नहीं कर पाता है। कैमरा ने वो शॉट कवर कर लिया और हमने दिखा दिया, वो बाकी जो दूसरे चैनल्स के कैमरा पर्सन है वो नहीं पहुंच पाते। तो ये तो आपका एक तरीके से पूरा टीम वर्क है कि हमें अपने दिमाग, आंख, नाक सब खोल के रखना है फील्ड में, कहीं कोई ऐसा शॉट मिल जाए जो टीआरपी लिया है। डेफिनेटली प्रतीक्षा, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है तुमसे कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जब तुम स्क्रिप्ट बना रही हो या फिर एंकरिंग कर रही हो जहां पर तुम्हें लगे कि अगर ये कर लिया होता तो आज कुछ ऐसा हो जाता। इट, आई नो इट इज अ लर्निंग एक्सपीरियंस, हम सबके दिन में प्रोफेशन में रोज एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, पर कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आज तक कभी भूल नहीं पाई हो, चाहे वो लर्निंग के तरीके से ले लो, चाहे फिर वो तुम्हारे प्रोफेशन में बहुत ही एक अच्छा ऐसा एक्सपीरियंस है जिसको तुम बार बार रिकॉल करके ग्रो कर रही हो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मैम मोमेंट था जब मेरी एमपीसीजी में ज्वाइनिंग थी और उस टाइम कमलनाथ सरकार थी। सिर्फ 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी और उसको रातों रात शिवराज सरकार ने गिराया था बिकॉज ऑफ सिंधिया। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स ले आए थे वो, और वो स्टोरी कवर करना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और मेरी शिफ्ट नहीं थी उस टाइम, लेकिन मैं मिड नाइट मैं घर से ऑफिस मैंने कांटेक्ट किया कि सर ये स्टोरी मुझे चाहिए, मुझे कवर करना है, मुझे स्टोरी में रहना है। तो मेरे ऑफिस के जो मेरे हेड हैं उन्होंने मिड नाइट मुझे कैब भिजवाई थी और मैं ऑफिस गई थी और स्टोरी को मैंने कवर किया था, जिसके बाद मुझे प्रमोशन भी मिला। मैं प्रोडक्शन से सीधा असिस्टेंट प्रोड्यूसर बनी और वही एक मोमेंट था मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आज भी शिवराज सरकार है और उसके पूरे मंत्रिमंडल, जितने हम लोग की टीम है और उसके जो मंत्रिमंडल है उनके साथ जो इंटरेक्शन था, सारी चीजें, वो मेरा था कि मुझे उस चीज को हर हाल में कवर करना है। क्यों? क्योंकि वही एक पॉइंट होता है, आपको एक भगवान होता है ना, एक पॉइंट आपको देता है, एक मौका देता है और आपको उसको कैच करना है। तो मेरे लिए वही एक मौका था जो मुझे कैच करना था और अपने टैलेंट को, अपना जो मैं लिखती हूँ, बोलती हूँ, मुझे दिखाना था मेरे डिपार्टमेंट को कि देखिए मैं कर सकती हूँ। उसके बाद तो मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो गया, मैं प्रमोशन हो गया, मेरी डेस्क चेंज हो गई और बस आज मैं लगातार उसी चीज के लिए काम कर रही हूँ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगा प्रतीक्षा तुमसे बात करके, तुमसे बातें सुनकर तुम्हारे एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि मैंने भी तुम्हें एज अ स्टूडेंट देखा है और जब मैंने डीएमई ज्वाइन किया था तो तुम लोग 5th सेमेस्टर में थे आई गेस। तो उसके बाद धीरे धीरे फाइनल प्रोजेक्ट जब तक आया तब तक तुम लोगों के साथ ज्यादा बात होनी शुरू हुई, सब्जेक्ट लिया तुम लोगों का। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि एक बार, वैसे मुझे लगता है डीएमई में हर एक स्टूडेंट को मुझसे डांट पड़ती है, आज मैं लाइव ये चीज बोल रही हूँ और तुम भी उनमें से एक थी। आई स्टिल रिमेम्बर कि हरजीत सर की लैब में कुछ ऐसा हो गया और तुमने उस टाइम पर मतलब
अजीब सा हो गया था तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। मैम, हाँ वो चीज मेरे लिए इतनी, मतलब थोड़ा मेरे लिए इतना मुझे बुरा इस बात का लगा था कि एक तो कभी हम आप लोगों से कभी हम लोग को डांट नहीं पड़ी है, शायद इस वजह से हमेशा प्यार और हमेशा गाइडेंस। और कभी, क्योंकि हम लोग हमेशा पारुल मैम से डरते थे, पारुल मैम से डांट खानी है, पारुल मैम डांट देंगी, ऐसे नहीं करना है आप लोग हमेशा। तो उस दिन एकदम से डांट खाना वो मेरे लिए अच्छा भी था, क्योंकि मेरी गलती भी थी, और मेरे लिए थोड़ा सा था कि नहीं यार मैम ने डांट दिया जाते जाते, लेकिन इट वाज रियली गुड, इट वाज वेरी गुड, मतलब ठीक है वो चीज। डेफिनेटली मेरे लिए भी ही एक इंसिडेंट था जब मैंने प्रतीक्षा मिश्रा को एज अ स्टूडेंट ऑफ एज अ सिंसियर एंड यू कैन से दैट अ गुड एस्पायरेंट ऑफ डीएमई मीडिया स्कूल मैंने जाना। तो मेरे लिए भी वो एक ऐसा इंसिडेंट था जब मैंने प्रतीक्षा मिश्रा को एक बहुत ही अच्छा एकेडमिक कंडक्ट रखने वाले स्टूडेंट के तरीके से जाना। सो इट वाज अ वंडरफुल जर्नी विद यू, चाहे वो 2 सेमेस्टर की थी, बट एंड ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी वंडरफुल सेशन विद यू। एक मेरे लिए हाँ मेरे बोलो लिए बोलो। डीएमई हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मैम, हमेशा मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो 3 साल मेरे डीएमई, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का टाइम है, चाहे उसके बाद यहाँ शिफ्ट हो गया 62 का टाइम है। कॉलेज जब सिर्फ 37 बच्चों की क्लास होती थी, और वो 17 स्टूडेंट्स जो हमारे सीनियर्स थे उनकी क्लास होती थी, वो बैच हो, चाहे वो हमारे स्ट्रीट प्लेज हो, चाहे वो हमारा फेस्ट हो, कुछ भी अलोहा हो, जब मैंने अलोहा होस्ट किया था, चाहे वो वाली चीजें हो, हमेशा हर साल जब भी अलोहा शुरू हुआ एंकर के तौर पे मुझे चुनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एंकर्स की लाइन लगी है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एंकरिंग करनी है, होस्ट करना है अलोहा, लेकिन मैम के जहन में, मैम के मन में सिर्फ एक नाम आया कि प्रतीक्षा को होस्ट रखना है। तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि मैं डीएमई के लिए इतनी अच्छी स्टूडेंट हूँ। नहीं नहीं डेफिनेटली। अच्छा एक लास्ट चीज बताओ, तुम्हारा कोई सीक्रेट मंत्रा? सीक्रेट मंत्रा मैम मेरे लिए और डीएमएन्स के लिए मैं यही कहूंगी, मेहनत और टैलेंट बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर टैलेंट है और उस चीज में आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी बीट हो, फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। अगर आपने थोड़ा भी अपना फोकस इधर उधर किया तो शायद आप अपने करियर के साथ खेल रहे हैं। आप अपने टैलेंट को परखिए, अपने टैलेंट को समझिए और उस चीज में ही अपने आप को आगे बढ़ाइए। ये रहे कि अगर आपको लिखना पसंद है लेकिन आपको करना कुछ और है, ऐसे हो नहीं पाएगा। होता है कभी कभी कि आपको मौका नहीं मिलता है, लेकिन आपको उस चीज के लिए वेट करना है और उस चीज पे फोकस रहना है, अपना फोकस नहीं हिलाना है। खबरों की जानकारी, चीजों की नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी होनी चाहिए, तभी शायद आप उस चीज में आगे बढ़ पाएंगे। और फोकस रहना बहुत जरूरी है। अगर फोकस जो चीज है वो आपको शायद आगे, बहुत आगे ले जाती है। और मैं चाहती हूँ मेरे डीएमएन इतना अच्छा काम करे, इतना फोकस रहे कि मोस्टली जितने भी हमारे आने वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, उसमें डीएमएन हो। थैंक यू प्रतीक्षा, थैंक यू सो मच। Now at the end, I request Professor Dr. Susmita Bala, Head DME Media School, to share few words with us. थैंक यू मनमीत। वैसे तो मैंने काफी कुछ शेयर किया, लेकिन हाँ, जो प्रतीक्षा ने यहाँ के बहुत सारी बातें शेयर की, बहुत इंस्पायरिंग था, और स्टूडेंट्स को भी मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सीखा होगा उन्होंने। इसके साथ ही जो अभी बात हो रही थी कि फोकस्ड होना जरूरी है, तो यस, मल्टीटास्किंग होना एक बात है, लेकिन हाँ, किसी आप 1 या 2 एरिया में फोकस करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपकी चॉइस होती है वो नहीं मिलता, तो आपके पास 2 ऑप्शन होने चाहिए। तो आप उन 2 ऑप्शन को, दोनों को कम से कम स्ट्रांग रखें। मल्टीटास्किंग इज अनदर थिंग, क्योंकि आपको लगता है थोड़ा 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 हर सेमेस्टर में जब आप सीखते जाते हैं, तो फिर सेमेस्टर में आके आप एक बार एकदम फोकस्ड हो जाते हैं कि हाँ, अब हमें इस फील्ड में जाना है। वहां पे भी मेरा केवल एक कहना होता है कि आप कम से कम 2 ऑप्शन लेके चलिए, कि आपको अगर एक ऑप्शन है वहां इंटर्नशिप नहीं मिलती है, प्लेसमेंट नहीं मिलता है, और दूसरी जगह भेजा जाता है, तो आप उतने ही हार्ड कोर जर्नलिस्ट बन के, हार्ड कोर वर्कर बन के वहां काम करें, तो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे। और जितना आपका आउटपुट अच्छा होगा, उतना ही आपको रिकॉग्निशन मिलेगी। सो मेक योर आइडेंटिटी and make yourself strong. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. And my best wishes to you, Pratiksha. I request Khushi Chaudhary, student of DME Media School, Semester 4, to kindly extend formal vote of thanks for the session. Thank you, ma'am.
My foremost thanks to Ms. Pratiksha. She has spared time for us and shared her experience and learnings with us. I extend my sincere thanks to Vice Chairman Mr. Aman Sahani, Director General Honorable Justice Bhavar Singh, Director Dr. Ravikant Swami, Dean Professor Dr. Amrish Saxena, and Head Professor Dr. Susmita Bala at Delhi Metropolitan Education. Our seniors have supported us in all possible ways to motivate and encourage us to take initiatives which eventually becomes the part of our rich academy. My heartfelt thanks to the faculty and students of DME Media School. I would also like to thank Mr. Sumantra Sarthidas, Mr. Vishal Sahai, and Mr. Pramod Kumar Pandey, Assistant Professors at Delhi Metropolitan Education. With this, we conclude our today's session. Thank you, everyone. Stay tuned for another session of Interactive Alumni Series. I, Khushi Chaudhary, take your leave for today. The first impression that comes to our mind about any college: tall buildings, big classrooms, large lobby areas, thick books, IT labs, assignments, class tests, and projects. Nothing besides that. Every hour, minute, second spent here help us carving and shaping our persona, cultivating innovative mindsets for the challenging world. Learning is a lifelong process. Sharing knowledge, inculcating values of life, spark the innovative horizons of mind. Fun and frolic is the nature of every nook and corner here. A daily dose of thrill we are sure to get here.